Video is about to be a modal verbs, and after watching this complete video you will be able to form a sentence by using modal verbs. So if you want to make your relatives, your near and dear ones to be aware how to use modal verbs in sentence formation, do share this video with all your near and dear ones, and like my videos if you like my this video. So please subscribe my channel if you are visiting first time on my this channel, so that I will get lots of inspiration to make more videos about the English grammar, public speaking and creative writings. Thank you so much. Let's start today's video. Bring 9 modal verbs. Basically there are mainly 9 modal verbs which we use while communicating with people. Let's have a look one by one on these modal verbs. First modal verb is shall, second one is should, will, would, can, could, may, migst, might, must and ought to. So one by one we will learn the different types of concepts related with different modal verbs, which will help you to communicate with your relatives, with your people in your conversation, how to form sentence negatively, positively, how to ask questions by using these all modal verbs. So let's have a look on the upcoming concepts. If we talk about first modal verb, which is can. Friends, you can use can and could together. They both denote the same meaning. Sometimes can denotes the present and could denotes the past. So if you want to tell the ability of anything, like any person, you use can. Generally, if we see the example, David can speak 3 languages. Here we are telling the ability of David, which is he can speak 3 languages. So it is the ability of David. He could speak fluent French when he was 5. Could. Here you can see this is denoting the past thing, past action. Okay. So can is used for present tense. If whenever you want to tell the ability in present, you will use can. I can teach all of you. So this is my ability that I can teach all of you. Okay. Second thing, could. If I say I could teach all of you, that means in past I could teach, means मैं past में पढ़ा सकती थी. I can मतलब मैं सकती हूँ और I could मतलब मैं पढ़ा सकती थी. Let's have more example with the chapter can. If I say he can draw flower, means वह flower draw कर सकता है. In this concept, I am telling the ability of his by using can modal verb. वह flower draw कर सकता है. He can draw the flower. अगर मैं यही को could का यूज करके बोलूँ, he could draw the flower means वह flower draw कर सकता था. तो फ्रेंड्स, जब आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ जनरल सेंटेंस में बात करते हैं कि वो ये कर सकता है, वे ये कर सकते हैं, वो आज आ सकते हैं, बट यहाँ पर हम आ सकते हैं जब पॉसिबिलिटी होगी, कि वो श्योरिटी है कि वो आएंगे ही. दे कैन कम टुमारो, दे मे टुमारो. सो आई विल टीच यू द कंसेप्ट ऑफ मे ऑल्सो. अभी हम सिर्फ कैन को लेके चलते हैं. तो नेक्स्ट जैसा हम बोलना चाहें कि आयुषी कैन कम टुमारो और आयुषी मे कम टुमारो. That we will study on that topic. Okay, so now let's go ahead to learn more things about the can. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, जो आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करेंगे, आपको हमेशा पहले सब्जेक्ट रखना है. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट है ना. देन कैन जो कि modal verb है, जो कि ये बताता है प्रेजेंट में कोई पर्टिकुलर पर्सन वो काम कर सकता है. सो डेविड कैन
एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है स्पीक। डेविड कैन स्पीक मतलब डेविड बोल सकता है। आई कैन मेक, मैं बना सकती हूँ। दे कैन गो, वे जा सकते हैं। ओके। मारिया कैन सेलिब्रेट हर बर्थडे, मारिया अपना बर्थडे बना सकती है। तो जो आपको हमेशा याद रखना है, वेदर यू आर यूजिंग कैन, कुड, मे, शुड, जो भी आप यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला होता है वही यही होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके। तो अभी हमने सीखा कैन का यूज़, कैन आप कैसे यूज़ करना है, बट इसके लिए आपको डिफरेंट वर्ब का नॉलेज होना चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे मनाना, सेलिब्रेट, राइट, सिलना, स्टिचिंग, cooking, cook. I can cook dal and chawal, like that. So you should know the various actions name कि हम उस particular action को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कैन, कुड एंड मे की टुगेदर, है ना। तो जब बात होती है परमिशन की, जब आपको किसी को परमिशन देनी होती है या हमें किसी से परमिशन लेनी होती है, तब हम मे और कैन का यूज़ करते हैं। मे का यूज़ हम किसी अपने से बड़ों से परमिशन लेने के लिए करते हैं। जैसे कि आप बोलते भी हैं, मैम मे आई ड्रिंक वाटर। यहाँ पर आप परमिशन लेते हैं, इसलिए आप MAY मे का यूज़ करते हैं। वैसे ही आप कैन का यूज़ करेंगे जब आप स्मॉल, अपने से छोटे लोगों से, यंगर लोगों से आप कोई परमिशन लेते हैं। जैसे कि कैन आई टेक योर पेन। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज़। कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज़। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि क्या मैं उस चेयर में बैठ सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन यूज़ किया गया है। मे बी जो पर्सन पूछ रहा है वो क्या होगा, वो अपने से छोटे से पूछ रहा होगा। बट लेकिन जब आप किसी बड़े से पूछेंगे तो आप पूछेंगे मे आई सिट इन दैट चेयर प्लीज़, जब आप अपनों से बड़ों से पूछेंगे। जैसे कि आप अपने टीचर से, मैम मे आई सिट देयर। ओके। आप कैन की जगह कुड भी बोल सकते हैं। कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं वह विंडो खोल सकता हूँ। कुड आई ओपन द विंडो। कुड यू प्लीज शट द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। तो ये तो हमारे हो जाते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। अभी हमने एफर्मेटिव सेंटेंस का आपका फॉर्मूला बताया, जो कि होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम मूडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जैसे हम बोल सकते हैं यू कुड स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। या हम बोल सकते हैं यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। वैसे ही अगर हमें श्योरिटी नहीं है और हमें किसी से पूछना है कि क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, कैन ही स्पीक इंग्लिश, बट यहाँ पर अगर मुझे नहीं पता किसी पर्टिकुलर बारे में, पर्सन के बारे में, तो मैं बोल सकती हूँ ही मे स्पीक इंग्लिश। तो जब मैंने मे बोला तो वहाँ पे श्योरिटी मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो बोल भी सकता है या नहीं बोल सकता। तो मे जो होता है ये ना क्या करता है, ये किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को बताता है। तो आप जब बात करेंगे, आप कोई चीज़ अगर आपकी कन्फर्म है तो आप कैन का यूज़ करें एबिलिटी बताने में। परमिशन लेनी है आपको किसी से तो आप कैन, कुड और मे का यूज़ कर सकते हैं। कैन का यूज़ हम यूज़ करेंगे जब हम अपनों से छोटे लोगों से परमिशन मांगेंगे, और मे का यूज़ करेंगे जब हम अपनों से बड़े लोगों से परमिशन मांगेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ चलिए यहाँ पर कि जो हमारा क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मूडल वर्ब रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मे को रखा हुआ है। फिर हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मे आई रखा है, आई सब्जेक्ट है। एंड फिर वर्ब रखते हैं जो कि गो है। मे आई गो मीन्स क्या मैं जा सकती हूँ। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ। Here I am using may because I am asking permission from any elder one, and here I am using can because I am asking permission from any younger one. So this you have to keep remember in your mind. When you take permission from your elders, you should use may,
and when you take permissions from your youngers you should use can. You can use can and could together means either you can use can or could. Okay, now let's learn the use of should. अगर हम शुड की बात करें तो जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए, उस कंडीशन में हम शुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब तुम्हें कम से कम साल में 2 बार अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, इसलिए हमने शुड का यूज़ किया है। यू शुड ट्राई टू लूज़ योर वेट, तुम्हें अपना वेट कम करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। सो एज आई टोल्ड यू कि जो जनरल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है एफर्मेटिव सेंटेंस का, वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल वर्ब आती है जो कि शुड है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। यू शुड कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना काम समय पे करना चाहिए। यू शुड कॉम योर हेयर प्रॉपरली, तुम्हें अपने बालों में अच्छे से कंघी करनी चाहिए। तो ये था शुड का यूज़। नाउ लेट्स लर्न द यूज़ ऑफ मस्ट एंड हैव टू। मस्ट एंड हैव टू का यूज़ दोस्तों हम तब करते हैं जब हमें किसी को बताना होता है कि उसको यह काम करना ही चाहिए, है ना। जैसे कि आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, जैसे कि आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंस, मतलब मुझे ज़रूरी ये सारे टेंस के रूल्स याद कर लेने चाहिए। या यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर यू गेट इनटू द मॉस्क, है ना। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन हो रहा है कि मतलब हमें वो काम करना ही चाहिए। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर टुमारो, मतलब कल से पहले तुम्हें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। तो जब आप किसी को ये बोलना चाहते हैं कि उसको करना ही है, हैव टू, यू हैव टू गो देयर, मतलब वहाँ पे जाना ही है, तब हम इस कंडीशन में मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं जो कि मस्ट और हैव टू होती हैं। इस कंडीशन में जनरल जो एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म होते हैं सेम होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आई सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब मस्ट है, और मेमोराइज करना मतलब याद करना, ये हो जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट देन मॉडल वर्ब देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट है हमारा माइट, मे, कुड एंड कैन। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताना है कि ये पॉसिबिलिटी को शो करते, पॉसिबिलिटी मतलब वो चीज़ होगी भी या नहीं भी होगी, बट जब आप कहते हैं कैन या कुड मतलब वो चीज़ होनी ही है। ओके, जैसे कि मैंने बोल दिया अगर शी कैन लूज़ हर वेट, तो ये पॉसिबल है कि वो कर सकती है, लेकिन मैं बोल दूँ अगर शी मे लूज़ हर वेट, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब वो करेगी भी या नहीं भी करेगी। तो यहाँ पे हम मे और माइट का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी बताने में, कुड और कैन का यूज़ हम सर्टेनिटी बताने में करते कि वो चीज़ निश्चित ही होनी है। तो हम इस कंडीशन में ये 4 मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए, परमिशन देने के लिए भी और एबिलिटी बताने के लिए भी, है ना। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा है बट ये महंगा हो सकता है। तो जब यहाँ मैं ये बोल रही हूँ इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब मुझे श्योरिटी नहीं है कि ये महंगा है भी या नहीं है, इसलिए मैंने माइट का यूज़ बोला। यू कैन यूज़ मे ऑल्सो इंस्टीड ऑफ माइट, इट मे बी वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो माइट और मे का यूज़ आप कर सकते हैं। रिचर्ड मे बी कमिंग टू सी यू अस टुमारो, तो यहाँ पे रिचर्ड इज सब्जेक्ट, मे क्या हो जाएगा हमारा मॉडल वर्ब, बी कमिंग यहाँ पे ये वर्ब हो जाएगा टू सी अस टुमारो, रिचर्ड जो है वो कल आ सकता है हमें देखने के लिए। तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि वो आएगा भी या नहीं आएगा, इसलिए हमने मे बोला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे कैन, कुड, मे और शुड, हैव टू का यूज़ करते हैं। अब चलिए इनको हम बहुत डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे हमें सारी मॉडल वर्ब्स का कहाँ कहाँ पे यूज़ करना होता है। So दोस्तों, before starting this thing I would like to request you, if you are visiting first time on my channel, do subscribe my channel so that you can learn many things about the English grammar, public speaking and creative writing.
In upcoming videos, I will cover many topics which will be related to public speaking, creative writing and grammar too. So चलिए समझ लेते हैं हम वन बाय वन. कैन का यूज़ जैसे मैंने आपको बताया, आप एक रजिस्टर में ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं. कीप रिवाइजिंग द थिंग्स, ओके, सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट द थिंग्स एंड यूज थिंग्स अ लॉट. तो दोस्तों जब हम बात करते हैं कैन की, तो कैन जो होता है ये कब यूज़ होता है, कैन जो होता है ये कब यूज़ होता है, ये हमें एबिलिटी बताता है, किसी चीज़ की योग्यता बताता है, डाउट बताता है, एस्टॉनिशमेंट बताता है, या हमें परमिशन देना होता है. यू कैन ओपन द डोर, मैंने अगर ये बोला यू कैन ओपन द डोर, मतलब अब तुम दरवाज़ा खोल सकते हो. तो परमिशन देने में भी हम कैन का यूज़ करते हैं. पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, कैन यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं. वहीं अगर हम बात करें मे की, अभी दोस्तों हम एफर्मेटिव सेंटेंस कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ बता दूंगी यू विल हैव लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न. तो अभी आप सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि आपको जनरली कैसे सेंटेंस बनाने हैं. नेक्स्ट हमारा है एम ए वाई में जो होता है ये परमिशन देने में यूज़ होता है ना. मे आई कम इन, मे आई गो टू वॉशरूम. इफ़ नॉट प्रोविज़न, ओके. सपोजिशन विद डाउट, सो लाइक मैंने बोला शी मे कम टुमारो, मतलब यहाँ पे मुझे डाउट है कि वो आएगी भी या नहीं भी आएगी. तो डाउट जब होता है तब भी हम मे का यूज़ करते हैं. वो आ सकती है, शी मे कम, शी मे नॉट कम, वो नहीं आ सकती, मतलब श्योरिटी इज़ नॉट देयर. मस्ट का यूज़ हम करते हैं ऑब्लिगेशन में, मतलब वो चीज़ करनी ही है. फर्म नेसेसिटी बता रहे हैं हम कि वो काम बिल्कुल करना ही पड़ेगा. यू मस्ट हैव टू बाय दिस फ्लैग ऑफ 5 रुपीज़, है ना, तो तुम्हें ख़रीदना ही होगा. इट्स मस्ट, ऑब्लिगेशन हो गया. लॉजिकल कंक्लूजन बताने में या प्रोबेबिलिटी बताने में हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का. शैल जो होता है ये इंटेंशन या सपोजिशन को बताता है. शैल वी यूज्ड इन द फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, शैल का यूज़ हम आई के साथ करते हैं और वी के साथ करते हैं, मतलब आई और वी के साथ भी करते हैं हम शैल का यूज़ जब हमें श्योरिटी होती है. आई शैल गो, है ना, आई शैल गो मतलब मैं जाऊंगी. आई विल गो बताएगा श्योरिटी को, यहाँ पे शैल का यूज़ कर दिया, मतलब कोई अभी कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊंगी भी या नहीं भी जाऊंगी. तो शैल जो होता है ये श्योरिटी नहीं बताता, और विल जो होता है ये श्योरिटी में यूज़ करते हैं हम. बट आपको ये याद रखना है कि आई और वी के साथ ही हम शैल का यूज़ करते हैं. तो अगर आप बोलेंगे शी शैल कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चीज़ सही तो होगी बट थोड़ा सा वहाँ पे श्योरिटी नहीं होगी. मेनली हम आई और वी के साथ ही शैल का यूज़ करते हैं. वैसे ही नेक्स्ट हमारा जो है दोस्तों वो है विल जो होता है विश को शो करता है, डिज़ायर को शो करता है. विल मतलब आपकी जो मन की इच्छा होती है ना उसको शो करता है. कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर, आई विल बिकम डॉक्टर, तो यहाँ पे आपकी जो इच्छा है वो शो हो रही है ना, तो विल उस कंडीशन में यूज़ होता है. ओट टू मोरल ड्यूटी को बताता है. ओट टू क्या करेगा, मोरल ड्यूटी को बताएगा. इंसिस्टेंट एडवाइस देगा, ओके. स्ट्रिक्ट या रिकमेंडेशंस को बताता है. आई यू ओट टू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस प्रोडक्ट विल बी गुड फॉर योर चाइल्ड, तो यहाँ पे हमने उसको रिकमेंड कर दी, वो चीज़ है ना, स्ट्रिक्टली रिकमेंड की है, तो वहाँ पे ओट टू यूज़ करेंगे. नीड नेसेसिटी को बताएगा. आई नीड वाटर, आई एम फीलिंग थर्स्टी, तो नीड भी एक मॉडल वर्ब है जो कि नेसेसिटी मतलब आवश्यकता को बताता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यकता को बताता है कि मतलब वो चीज़ हमें ज़रूरत ही है. टू बी एक ऑब्लिगेशन है, मतलब कि वो चीज़ हमें करनी ही है. अराइजिंग आउट ऑफ अरेंजमेंट और एग्रीमेंट. यू हैव टू बी हियर, मतलब तुम्हें यहाँ होना ही होगा. हैव टू अनविलिंगनेस को बताएगा, मतलब मन की इच्छा नहीं थी लेकिन तो भी हमें करना पड़ रहा है वो चीज़. फोर्स कर रहा है कोई हमको सरकमटेंसेस को, जैसे यू हैव टू स्टे हियर टिल 2 o'clock, तो मैंने जब ये बोला कि यू हैव टू स्टे हियर टिल 2 o'clock, मतलब तुम्हें यहाँ 2 बजे तक खड़े रहना ही होगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें ऑब्लिगेशन हो गया. फोर्सफुली भी हो सकता है. वुड जो होता है ये विश को बताता है, विथ या टू लाइक को बताता है. पोलाइट रिक्वेस्ट, अ हैबिट ऑफ द पास्ट. आई वुड बिकम अ डॉक्टर, ओके. सो नाउ शुड जो होता है ये नेसेसिटी को बताएगा, एडवाइस को बताएगा, ब्लेम को बताएगा, रिकमेंडेशन को बताएगा,
अप्रोच को बताएगा, ये रिग्रेट को बताएगा। आई शुड हैव कम्प्लीटेड माई टास्क, मुझे अपना टास्क कंप्लीट कर लेना चाहिए था, बट अभी हम सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यूज टू रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब जो काम आप पास्ट में बहुत बार करते थे। आई यूज टू स्टडी टिल 2 o'clock एट नाइट, तो यहाँ पे मैंने रात पुराने समय की बात बता दी, तो इसलिए हमने यूज टू का यूज़ किया है। So now I am giving you the formula to form a sentence, affirmative sentence easily, which I am writing here. तो जनरली आपका जो फॉर्मूला होता है एफर्मेटिव सेंटेंस का, AFFIR एफर्मेटिव सेंटेंस आपके जो होंगे उसका फॉर्मूला लिखना है हमें। उसका फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट लेते हैं आप पहले, सब्जेक्ट मतलब जो नाउन हो जाएगी हमारी, उसके बाद आप मूडल वर्ब लेते हैं। मूडल वर्ब जो होंगी वो ही हो जाएगा हमारा कैन, कुड, है ना, वुड, शुड, ये। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको रखनी होती है। तो आप जब भी बनाएंगे तो आप इसका यूज़ करके सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे जब आप जनरल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि शी मे कम टुमारो, यहाँ पे जब मैंने ये बोला कि शी में कम टुमारो मतलब वो कल आ सकती है, मे का यूज़ किया है मतलब ये कंफर्म नहीं है अभी, है ना, लेकिन हमने बोल दिया शी कैन कम टुमारो, मतलब ये हम परमिशन दे रहे हैं, शी कैन कम टुमारो। तो यहाँ पे हमने परमिशन दी, इसलिए हमने क्या किया, हमने कैन का यूज़ किया। शी शुड कम, शी शुड कम टुमारो, मतलब उसको कल आना चाहिए, शी शुड कम टुमारो। अगर मैं बोलती हूँ ही विल कम टुमारो, मीन्स वो कल आएगा, ही विल कम टुमारो मीन्स वो कल आएगा। आई मस्ट कंप्लीट, आई मस्ट, अगर मैं बोलती हूँ आई मस्ट कंप्लीट माई टास्क टुडे, मतलब कि मुझे अपना काम आज कर लेना चाहिए। मस्ट मतलब कंपलसरी ही कर लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो सेंटेंस फॉर्म कर रही हूँ, पहले मैंने सब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर मूडल वर्ब रखी हुई है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, फिर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट मतलब जो बात की बातें होती हैं। तो आप इस तरीके से दोस्तों अपने सेंटेंस फॉर्म करके लोगों से बात कर सकते हैं। मेन जो हमारा होता है इंग्लिश लर्न करने का वो ये होता है कि राइटिंग इज़ important but your speaking matters a lot. So if you want to learn English speaking, you should use these all things in your daily life so that your fluency will come. Okay, and when you will become fluent, you will be easily able to communicate with your friends, your relatives, and you will be easily able to express your feelings and thoughts with the people. So thank you so much for watching this video. I request you to do subscribe and like and share my videos with your near and dear ones, so that I get inspired from all your these support, so that I can make more videos for you. Thank you so much. Bye bye.